Is the white screen visible to everybody? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we will be using like virtual tools to learn practical geometry. तो इसलिए मैं आपको एक बार पहले सारे tools दिखा देती हूँ, क्योंकि ये tools जो हैं हमारे जो real life में tools होते हैं उनसे थोड़े different आपको लग सकते हैं. तो इसलिए chapter start करने से पहले let us look at all the tools. ठीक है? This is usual ruler. ठीक है? बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपके geometry box में होता है. This is protractor. Again, it is just like the one you have in your geometry box. Then we have normal pencil, eraser and other things. One thing that I want you to see is कंपस. इसमें कंपस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये आपको ध्यान से देखना है कि कंपस कैसा है. देखिए इसमें कंपस ये कैसा है, क्योंकि पेज पे हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से बना रहे हैं, तो इसमें लाइक दिस कंपस डज नॉट लुक लाइक रियल लाइफ कंपस. तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये कंपस वर्क कैसे करेगा. लाइक हाउ विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपको अपना कंपस कहाँ रख के क्या करना है. ओके, कैन यू ऑल सी दीज 4 पॉइंट्स लाइक? Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. यस, सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सर्कल में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आपका कंपस का पॉइंट है. दिस इज द पॉइंट ऑफ द कंपस. मैम मेरा नेट चला गया था, फिर से रिपीट कर सकती हैं आप? The point which you can see over here in the circle, that is the point of the compass. ये metallic part है, जो compass में metal का point दिया होता है, ये वो part है. और आपको right side पे ये pencil नजर आ रही है, ये वो part है जहाँ पे आपकी compass में पेंसिल फिक्स की जाती है. और बीच में ये हैंड बना हुआ है. दिस इज बेसिकली कि जब आप कंपस को स्प्रेड करते हैं तो ऊपर से हाथ से घुमाते हैं, तो ये उस तरह से बना हुआ है. तो ये स्ट्रेट लाइन जरूर लग रही है, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर कंपस. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें एक्चुअली ठीक से बना नहीं है, पर ये बिल्कुल ये बेसिकली ऐसे है कि ये है और ये है. यहाँ आपकी पेंसिल है और यहाँ आपका पॉइंट है कंपस का. ठीक है? और यहाँ आपका हैंड होता है, आप यहाँ से पकड़ते हैं कंपस को. पर क्योंकि इस तरह से नहीं बना हुआ है इस सॉफ्टवेयर में, इसलिए आई हैड टू एक्सप्लेन. ओके, सो नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट विल राइट द क्वेश्चन एंड देन विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द quadrilateral. Okay, so we are going to start exercise 4.1. ज़्यादा इसमें लिखने का कुछ नहीं है, we'll just directly start. So this is exercise 4.1. First write the name of the chapter. Chapter 4, practical geometry. And we are going to discuss exercise 4.1. So let me write the question first. This is the first question only. First question of your exercise. बहुत सारे parts हैं, तो इनको करने का यही तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, और आपको ये करने में I hope you will enjoy also. Construct a quadrilateral ABCD in which, अब आपको यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे और उन एलिमेंट्स की हेल्प से आपको कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, ABCD quadrilateral you have to construct in which AB is equal to 4.5 centimeter, okay, this has just disappeared. I hope you are writing side by side. Please write side by side.
so that you are constructing as we do it in the class. ठीक है, साथ में ही आपको कंस्ट्रक्ट करना है. Construct a quadrilateral ABCD in which, now what are the elements which are given to us? AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter, and AC is equal to 7 centimeter. Okay, this is the question. ठीक है, so we are going to try to construct this particular quadrilateral. अब हम जब भी कोई quadrilateral बनाते हैं, जैसे आप triangles में whenever you used to construct a triangle, आप एक rough figure draw करते थे. ठीक है, तो इसमें भी जब हम quadrilateral construct करेंगे, we will draw a rough figure first. Okay, so we will have to first draw a rough figure और उसके बाद हम इस quadrilateral को construct करने की कोशिश करेंगे. Okay, so let us start. What do we have to do? First, let us draw a rough figure in the solution. So in the solution, first we'll draw a rough figure. Okay, so this can be done by everybody. Like you can try to draw a rough figure on your own. ठीक है, कैसे rough figure हम बनाएंगे? Okay, what we will do is we will just draw a random figure. ठीक है, आपको randomly एक figure बनानी है जो quadrilateral आपको लगनी चाहिए. Just a second. Okay. So I am drawing a rough figure here like a quadrilateral. ठीक है, और इस quadrilateral का नाम आपको given है ABCD. आप कहीं पे भी ABCD लिख सकते हैं, कहीं से भी आप start कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने स्टार्ट किया A B C D, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी जो लाइन है वो पूरी की पूरी सेम सीक्वेंस में आनी चाहिए. लाइक सारे नाम सीक्वेंस में आने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले A B लिख रहे हैं और फिर D लिख दे रहे हैं. सारा लाइन में होना चाहिए ABCD. अब हम इस रफ फिगर में अपने सारे पार्ट्स मार्क कर लेते हैं कितने हैं. तो सबसे पहले AB है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 4.5 लिख लिया है. सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये रफ फिगर है. ठीक है, BC इज 5.5 सेंटीमीटर, CD इज 4 सेंटीमीटर, AD इज 6 सेंटीमीटर. इसके अलावा यहाँ पे आपको डायगोनल्स भी गिवन हैं. AB we have marked BC. See, we have marked AB, we have marked BC, we have marked CD, and we have also marked AD. Now one diagonal that is left, that is AC, 7 centimeter. So now we will mark the diagonal AC 7 centimeter. तो ये हमारी diagonal है 7. So basically in this figure, what all things are given to you? आपको 4 sides and 1 diagonal given है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की. जब भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको 5 चीजें, कोई भी 5 चीजें
पता होनी चाहिए, एंगल, साइड्स, कुछ भी, डायगोनल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं यू आर ऑलरेडी गिवन विद 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, तो आपको वो 5 चीजें पता है। सो द एंटायर एक्सरसाइज 4.1 दिस इज बेस्ड ऑन 4 sides and 1 diagonal। पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो इसी तरह के क्वेश्चंस वाली है, जिसमें 4 साइड्स और 1 डायगोनल आपको गिवन है। ठीक है, तो ये तो अब हमारी रफ फिगर हो गई। नाउ हैव यू ऑल ड्रॉन योर रफ फिगर? Yes, ड्रॉ ma'am. कर लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, बिकॉज आई विल हैव टू इरेज दिस। ठीक है, मैं ये इरेज कर दूंगी और उसके बाद फिर हम ये कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इस सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं लाइक नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर दूं और वापस हम इस स्लाइड पे आ पाए। तो आई होप आप सबने ड्रॉ कर लिया है, बिकॉज वंस इट इज गॉन इट विल नॉट कम बैक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन नाउ। ठीक है, तो आप अपनी रफ फिगर को देखते रहिएगा। सबसे पहले आपके बेस में क्या है रफ फिगर में? विच साइड इज एट योर बेस? AD. यस, AD इज द बेस। और AD की लेंथ कितनी है? 6 centimeter. Yes. So we will draw AD equal to 6 centimeter. तो आप अपने स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। So this is 6 सेंटीमीटर और इसका नाम भी लिख देंगे AD। Okay, have you all done this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब जितनी भी बाकी चीजें हैं उन्हें हमें धीरे धीरे मार्क करना है। अब हम सबसे पहले AB मार्क करते हैं। ठीक है, AB के लिए what should be the length of the what is the length of AB? 4.5. 4.5। ठीक है, तो जैसे आप ट्रायंगल्स, यस, जैसे आप ट्रायंगल्स में करते थे, आप क्या करेंगे? आप अपना स्केल लेंगे और आप कंपास लेंगे और आप कंपास को 0 पे रखते हुए कितनी आर्क खोलेंगे? 4.5 लेंथ की। So you have to open an arc equal to 4.5 length, 4.5 सेंटीमीटर की आर्क आप ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्केल एंड कंपास। तो मैंने स्केल के ऊपर कंपास रख के उसे 4.5 के इक्वल ओपन कर लिया है। एक बार आपकी कंपास ओपन हो गई तो उसके बाद आप उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। शायद नहीं। ठीक है, अब आप इस कंपास के पॉइंट को, ठीक है, कंपास का जो पॉइंट है उसको रखेंगे A के ऊपर। और जैसा कि आपको अपनी रफ फिगर में नजर आ रहा है, अब हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहले हम अपने कंपास को थोड़ा घुमा लेंगे, अब हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, AB के लिए इस तरह से आपके पास एक आर्क आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि आर्क्स कहाँ कट होंगी, और बहुत शार्प पेंसिल से आपको काम करना है सो दैट योर फिगर्स कम आउट वेरी नीट। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now look at the rough figure again. अब आप अपने रफ फिगर में देखिए आपको और कौन सी आर्क बनानी है। अब D से अब देखिए कितने लेंथ की आर्क बनाएंगे हम D से? DC is 4 equal to centimeter. 4 centimeter. yes, very good. So again we will take our scale, we will take the compass, and this time we will open the compass equal to 4 centimeter. पिछली बार हमने 4.5 ओपन किया था, इस बार सिर्फ 4 करना है। So open the compass equal to 4. स्केल और कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर्स हम ओपन करेंगे कंपास को।
Now take the compass, keep it at D, और अब हम एक आर्क और लगाएंगे। इस तरह से मैंने थोड़ी बड़ी आर्क लगा ली है बिकॉज आई डोंट नो वेयर द आर्क्स विल कट। अगर बाई चांस आपकी आर्क्स नहीं कट होती हैं तो आप वापस जाके उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी ये क्लास 7 में सीखा है। ठीक है, ये जो प्लस प्लस के साइन आ रहे हैं ए के ऊपर और डी के ऊपर, ये सॉफ्टवेयर की वजह से आ रहा है। जहाँ पे भी कंपास हम रखते हैं वहां पे ऐसा साइन आ जाता है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं ड्रॉ करना है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस। मैम डन। Okay, very good. Now we have done AB, we have done AD, we have done CD also. अब कौन सी लेंथ बाकी है? A से कौन सी लेंथ है? A के ऊपर A से एक लेंथ और बाकी है, वो कौन सी है? AC। Yes, very good. AC 7. So again you will take your ruler, you will take your compass and open the compass equal to 7 centimeter. Open the compass equal to 7 centimeter again. और क्योंकि अब ये AC हम ड्रॉ कर रहे हैं, C पॉइंट तो कहीं दिख नहीं रहा है हमें, तो A पे ही हमें रखना होता है। जो पॉइंट नजर आ रहा होता है उसी पे हम रखते हैं कंपास को। So I have kept it at A and without disturbing the compass we have to move it and we will again draw an arc. तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर में आर्क बनी है, ठीक है। This will be the arc. थोड़ा थिक बन गया, जस्ट इग्नोर इट। तो यहाँ से हमारे पास हमारा पॉइंट बी आ गया है। दिस इज द पॉइंट बी। ये पॉइंट बी कहाँ है? जहां दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट कर रही है। मैम इट्स C। Okay, yes, it's C. Thank you. This is not point B, this is C. Sorry. Okay, now which part is still left? मैम BC। Yes, BC is left. लेकिन B तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है, पर हमें पॉइंट C नजर आ रहा है जहां पे ये दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया है। तो हम C से ड्रॉ करेंगे बिकॉज BC एंड CB आर सेम। तो अगेन नाउ वी विल ओपन आवर कंपास इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। So we are opening it equal to 5.5 centimeter. Keep the ruler away after opening and without disturbing the compass. कंपास को हम पॉइंट C पे लेके आएंगे और हमारी पेंसिल से हम आर्क ड्रॉ करेंगे and that arc should cut the previous arc. तो आपके पास ऐसा एक फिगर आ जाएगी। Now the point which you have obtained is which point? D. अब आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं। With the help of your scale, you will join all the points. ठीक है, जितने भी आप जो आपकी रफ फिगर थी वो सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे मैंने ए बी ड्रॉ कर दिया, उसकी लेंथ भी यहाँ लिख देनी है। इस बार हम सेंटीमीटर को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये रफ फिगर नहीं है। दिस इज योर ओरिजिनल फिगर। जॉइन बी सी एंड राइट 5.5 सेंटीमीटर। जॉइन सी डी
join CD and write 4 centimeter. And one more part which was given to you was the diagonal, that is 7 centimeter. Diagonal AC 7 centimeter. So this will be the required quadrilateral. ठीक है, सब लोगों का quadrilateral बन गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, so I'm going to delete this and quickly we are going to try one more. अब इस बार हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको already आ गया है. So I'm going to take another question from your textbook exercise only. अब यहाँ पे okay, this is question 1 का ही part है पर हम इसे question 2 लिखेंगे यहाँ पे. Question 2, construct a quadrilateral jump. The name of the quadrilateral is jump, JUMP, in which JU is equal to 3.5 centimeter, UM is equal to 4 centimeter, MP is equal to 5 centimeters, PJ is equal to 4.5 centimeter, and PU is equal to 6.5 centimeters. So the first step would be to draw the rough figure. In the solution, first of all, we will draw the rough figure. The name of the quadrilateral is jump. So just draw a random quadrilateral और उसका नाम आप sequence wise लिखेंगे jump. तो इस बार हम कहीं और से start कर लेते हैं. J. Okay. I'm going to start it here. J U M P. JUMP is the quadrilateral jump. Now let us write all the lengths. JU is 3.5 centimeter. UM is 4 centimeters. MP is 5 centimeters. PJ is 4.5 centimeters. And one diagonal, that is PU, is also given to you. PU is 6.5 centimeters. आप किसी भी तरह से नाम लिख सकते हैं, that will not make any difference, लेकिन नाम sequence में होना चाहिए. So this is my rough figure, and now let us write what kind of quadrilateral it will be. आपको देखिए यहाँ पे clearly 4 sides and 1 diagonal given है. तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि इस पूरी exercise में आप मिलेंगे जिनमें 4 sides and 1 diagonal are there. Okay, so this is the rough figure, and now everybody can start constructing the quadrilateral. जल्दी से सब लोग construct करेंगे. I will not do anything. Rough figure is in front of you. You have to construct the quadrilateral. Quickly do it.
प्लीज लेट मी नो अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो। There are many ways of constructing the same quadrilateral. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मेथड गलत है, all the methods are correct. पर आपकी लेंस जितने भी आपको लाइन सेगमेंट्स की लेंथ दी गई है और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका करेक्ट होना चाहिए. लाइक इन योर बुक, आपके जो बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें वो डायगोनल से स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन. सो दैट इज आल्सो सेम थिंग. आप कहीं से भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. Done? Okay, very good. Done, ma'am. Okay, great. So everybody who has done the question, everybody has to do the question. ठीक है. और आप सब लोग क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन की इमेज क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे. सब लोग, जितने भी लोग अभी क्लास में हैं, सब लोगों को मुझे अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन की फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेजनी है, सो दैट आई कैन सी वेदर यू आर डूइंग इट राइट और नॉट. ठीक है, क्योंकि चेक करने का और तो कोई तरीका नहीं है. ओके, एंड नाउ वी हैव वन मोर क्लास एट व्हाट टाइम? डन मैम. ओके, आज हमारी एक और क्लास है. डू यू नो एट व्हाट टाइम? No, ma'am. नो, व्हाई? नो मैम. ओके, वी हैव अ क्लास. मैम टाइम टेबल नहीं मिला. अच्छा अच्छा, ठीक है. 11:45 पे आपकी क्लास है. Okay, ma'am. ठीक है, तो 11:45 पे आपको क्या करना होगा, आप दोबारा से अपने सारे मटेरियल लेके बैठेंगे. वी विल कंटिन्यू विद दिस. लेकिन ठीक है, अभी तो आपकी दूसरी भी क्लास होगी, तो जिसने बना लिया वो फोटो भेज दे, और जिसने अभी नहीं बनाया आप बाद में बना के भी भेज सकते हैं. ठीक है. Okay, Yes, ma'am. that's all in this class. See you at 11:45. Everybody should be present, okay? Those who are there already. Okay. Bye, ma'am. Bye bye. Thank you. बाय मैम. Bye everyone. बाय मैम. Bye, ma'am.